Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So one of the candidate asked me a question, कि sir, can I get home posting in IBPS PO? Now this question is a very important question, and we will elaborate the procedure so that you can go at the root information of such questions. Now, first of all, we have to understand how we get the posting. In IBPS PO, all vacancies are all India vacancies. So, on the date of declaration of result, each candidate who is selected is allotted the bank on the date of result itself. And this allocation of bank depends upon the category and the preference of the candidate, and accordingly IBPS allocate the bank, and no change in name of bank is permitted after allocation. The moment a candidate is selected, he or she is allocated to a particular bank. These lists will go to the particular bank. Then, depending upon the requirements, these banks will initiate their DV procedure and joining procedure. On conclusion of DV and at the time of joining, some banks may call the candidates for training. Some banks may give the direct posting also. So that depends upon the requirement of a bank at a particular time. And when they decide the posting, in certain banks they ask for your preferences. In certain banks it is not asked. So depending upon bank to bank, you may be asked for your preferences, you may not be asked for your preferences, and you may be allocated to a particular state or branch or a circle of a bank. Now, some people may get the same state posting, even same town posting also, depending upon the bank. Some may not get the same state, they may get different state, different city, depending upon the bank. But after joining the bank, the candidate will have a right to apply for inter-circle transfer. That means after completion of certain period of time in a particular state or in a particular branch, the employee will become eligible to apply for inter-circle transfer or interstate transfer, and that will be guided by the transfer policy of that bank. So each candidate has to refer the transfer policy, and after referring the transfer policy, the person can apply for change if initially he or she is posted in other states. Now from 1st April, most banks will adopt a new transparent transfer policy. So initially the backlog will be cleared. The people, those are already awaiting transfer to their native places, those applications may be cleared by the bank in phased manner, and thereafter the further candidates, those are now joining onwards, will have the chance to apply for ICT on depending upon completion of 10 years. So this is the position through which a person may get the home posting, a person may get the native town posting, or may be posted in some other states or some other cities. This is the position as far as IBPS PO is concerned. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज एक प्रश्न मुझसे पूछा गया कि सर, मेरा अगर IBPS PO में सिलेक्शन होता है तो क्या मुझे होम स्टेट मिल सकता है या नेटिव प्लेस में पोस्टिंग मिल सकती है? इस उत्तर को समझने के लिए हमें पूरे प्रोसीजर को समझना पड़ेगा, और जैसे ही हमें पूरा प्रोसीजर समझ आएगा तो हमारा उत्तर ऑटोमेटिक आ जाएगा.
IBPS PO एक ऑल इंडिया कंपटीशन है। इसमें जो आपकी सिलेक्शन होती है वो ऑल इंडिया होती है। तो जैसे ही कोई कैंडिडेट कट ऑफ को पार करता है और सेलेक्ट हो जाता है, तो उस कैंडिडेट को उसकी प्रेफरेंस और उसके कैटेगरी के आधार पर एक बैंक एलोकेट किया जाता है। ये बैंक का नाम आपके रिजल्ट के अंदर ही दर्शित होगा, उसी के अंदर मेंशन्ड होगा। जब वो बैंक आपको एलोकेट हो जाता है तो वो बैंक का नाम बदल नहीं सकता है, वो वही रहेगा। अब जो भी आपको बैंक एलोकेट हुआ है वो बैंक अपनी ज़रूरत अनुसार फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। IBPS सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट और डिटेल्स रिस्पेक्टिव बैंक को भेज देगा। उसके भेजने के बाद ये बैंक आपको DV के लिए, मेडिकल के लिए और ट्रेनिंग या पोस्टिंग के लिए आपको कॉल करते हैं। कई बैंकों में पहले ट्रेनिंग दी जाती है, बाद में पोस्टिंग होती है। कई बैंकों में डायरेक्ट पोस्टिंग भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये स्थिति बनती है कि क्या ये पोस्टिंग मुझे मेरे स्टेट में मिलेगी या अन्य स्टेट में मिलेगी, विद इन मेरे स्टेट क्या मुझे मेरे शहर में मिलेगी या दूसरे शहर में मिलेगी। इसके लिए विभिन्न बैंकों में अलग अलग गाइडलाइंस हैं। तो जो बैंक आपको एलोकेट किया हुआ है उसकी गाइडलाइंस के अनुसार ही आपको ये अलॉटमेंट मिलेगी। काफ़ी बैंकों में प्रेफरेंस भी मांगी जाती है और उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी किया जाता है कैंडिडेट्स को। काफ़ी बैंकों में प्रेफरेंस नहीं मानी जाती। अब मान लीजिए आपको अपने ही स्टेट में पोस्टिंग मिल गई या अपने ही सिटी में पोस्टिंग हो गई तो ठीक हो गया। अब कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी दूसरे स्टेट में पोस्टिंग हो जाएगी या दूसरी सिटी में पोस्टिंग हो जाएगी, उनका क्या होगा? उनके लिए इंटर सर्कल ट्रांसफ़र और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र रूट के जरिए अपने स्टेट या अपने सिटी में आने का विकल्प खुला रहता है। सब बैंकों में ये पॉलिसी है और उसके लिए आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी उस बैंक की रेफ़र करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2025 से नई ट्रांसफ़र पॉलिसी इसके लिए लागू की जा रही है सभी बैंकों में, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डायरेक्शन पर आधारित है, जिसके अंतर्गत जो लोग ऑलरेडी दूसरे स्टेट्स में पोस्टेड हैं या दूसरे सिटीज़ में पोस्टेड हैं वो अपने रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के जरिए अपने स्टेट में आ सकते हैं। उसके लिए उनको एक पोर्टल होगा जिस पे अप्लाई करना होगा। तो अभी क्या होगा, 1 अप्रैल के बाद जो पुराने बैकलॉग हैं पहले तो वो क्लियर होंगे। तो जो पुराने लोग दूसरे स्टेट्स में बैठे हैं वो फेस मैनर में उनकी एप्लीकेशंस क्लियर होंगी और वो अपने स्टेट या अपने सिटी की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। उसके बाद जो भी क्राइटेरिया ये बैंक ने अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी में रखा है, उस पीरियड, उस अवधि के पूरा होने के बाद जो नए कैंडिडेट हैं जो अब ज्वाइन करेंगे वो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जब उनका नंबर आएगा तो वो अपने स्टेट या अपने सिटी में ट्रांसफ़र पा सकते हैं। तो इसमें कोई अभी निश्चित अवधि नहीं है कि कितने साल में आप अपने सिटी या अपने स्टेट में वापस आ जाएंगे, पर क्योंकि नई पद्धति 1 अप्रैल से लागू हो रही है तो इससे एक आशा की किरण जगी है कि जो लोग काफ़ी सालों से दूसरे शहरों में थे या दूसरे स्टेट्स में थे उनको भी अपने स्टेट और अपने शहर में काम करने का मौका आने वाले दिनों में मिलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।